आदाब नाज़रीन, खैर मकदम है आपका जी सलाम देख रहे हैं आप। शाम के 6 बजे और मैं हाजिर हूं इस वक्त सलाम दक्कन में दक्कन की तमाम अहम खबरों से आपको बाखबर करने के लिए। आम इंतखाबात के बाद सामने आए सर्वे के बीच मुलाकातों का दौर जारी है। ऐसे में लीडरान दिल्ली का चक्कर लगाने लगे हैं। अपनी शिकायतों के साथ कुछ लीडरान इलेक्शन कमीशन पहुंच रहे हैं तो कई सियासी हालात पर जोड़ तोड़ शुरू कर चुके हैं। इसी कड़ी में आज आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू की ममता बनर्जी से मुलाकात को अहम माना जा रहा है। इससे पहले भी नायडू कांग्रेस सदर राहुल गांधी के अलावा एनसीपी लीडर शरद पवार और शरद यादव, अखिलेश यादव, मायावती जैसे लीडरान से मुलाकात कर चुके हैं। वाज़ेह है कि नताइज से पहले ही यूपीए सदर सोनिया गांधी अपोजिशन पार्टियों को मुत्तहिद करने में लग गई हैं। सोनिया गांधी अपोजिशन पार्टियों के सरबराहान को फोन कर बात कर चुकी हैं। What to do with all other political parties? Tomorrow we want to meet Election Commission again. Today you're meeting Mamta Banerjee, sir. Yeah. What is the plan, sir? What? Not to discuss politics. Even we request her to come to Delhi for meeting Election Commission. How do you see exit polls? What I'm saying, exit polls generally never tallied. It is a reality. Last time in Andhra Pradesh, they have given all exit polls they have given to ASR Congress Party. That is a different issue. But my fight is very clear. I wanted to bring transparency in election process itself. I am fighting this for the last 10 years. Now my idea is same existing machinery or mechanism, only added advantage. Voter should get the slip. After seeing with his eyes, you will put in the ballot box there itself. That they have to do it. और आखिरी मरहले की वोटिंग का काम मुकम्मल होते ही सामने आए सर्वे ने ऑपोजिशन की नींद उड़ा दी है। अपने हक में सामने आ रहे सर्वे से जहां बीजेपी काफी खुश है तो ऑपोजिशन लीडरान इसे तमाशा बताते नजर आ रहे हैं। कल आए एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए की हुकूमत बनना तय है, जबकि यूपीए को लेकर कई सर्वे चौंकाने वाले आदादो शुमार पेश कर रहे हैं। ऑपोजिशन लीडरान इस सर्वे को खारिज कर रहे हैं। कल के सर्वे का असर दक्कन रियासतों में भी देखा जा रहा है। साबिक मरकजी वजीर के रहमान खान ने जहां इस पर तीखा तंज किया तो येदियुरप्पा समेत दीगर लीडरान आज की हकीकत बताते नजर आए। See, as far as Karnataka goes, the kind of figures that they're showing, many of the exit polls are something which I cannot really believe. They're showing 3, 4, 5, 6, 7 like that. Definitely we are in a much better position and we will be able to win much more seats than last time. Last time we had won 9 and GDS had won 2, put together 11. This time we'll be crossing that number. So I do not agree with this exit poll projection which they made for Karnataka. 100% I can say that it's not an accurate assessment. इस बीच कर्नाटक कांग्रेस के रियासती सदर ने रियासती बीजेपी लीडर पर जमकर तंज किया। जहां उन्होंने येदियुरप्पा के सवालों को ख्वाब ख्याली बताया तो सीनियर लीडर के रहमान खान ने बीजेपी के मुद्दों पर सवाल उठाए। उनके लीडरान की नाजिबा बयानबाजी और पीएम मोदी की खामोशी पर भी उन्होंने निशाना साधा। It's nothing like stealing, because if they got a majority on their own, they could have formed the government. That's the way democracy functions. And they tried to form the government. Yediyurappa was sworn in as chief minister, but he did not have the numbers. There was no support. So what was the mandate? Mandate was it was a hung assembly. Mandate was a hung assembly, and we had the highest percentage of vote. Congress had the highest vote share in the state. So if you take that as a mandate, then we are at the number 1 position. And so that is their own interpretation. But in a coalition, when there is no majority, two people or 3 people have to get together to form governments, and we did that. So what is the issue? That is not an issue at all. और आम इंतखाबात के साथ कई रियासतों में ज़िमनी असेंबली इंतखाबात भी हुए, जिसमें तमिलनाडु के अलावा कर्नाटक की भी 2 सीटों पर 19 मई को वोट डाले गए। यहां कांग्रेस की मुहिम की बागडोर संभालने वाले रियासती वजीर जमीर अहमद खान ने एग्जिट पोल को खारिज कर दिया है। इस मौके पर उन्होंने गरीब अक़लियत के लिए घर बनाने की स्कीम की बात की। जमीर अहमद ने कहा कि 23 मई के बाद बजट आते ही इसका काम शुरू हो जाएगा। जमीर अहमद से खास बातचीत की हमारे नुमाइंदे शाहिद काजी ने।
वक्फ बोर्ड की जानिब से मुस्तहक लोगों को मकान देने का जो स्कीम है उस सिलसिले में बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ अक़लियती वज़ीर और वक्फ बोर्ड के वज़ीर हैं, बात करते हैं उनसे। साहब बताएं, वक्फ बोर्ड की जो स्कीम थी, जो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट था, वो कहीं ना कहीं बजट में उसका ऐलान नहीं हुआ, अब उस पर क्या करोगे? नहीं, वो एक्चुअल बजट में अनाउंस होने का था। सीएम से मैंने 2-3 बार रिव्यू मीटिंग होता है हमारा बजट का, वो रिव्यू मीटिंग में प्रपोजल रखा हुआ था, नहीं बजट में अनाउंस करने का था। रिव्यू बजट में मैं अनाउंस करता हूँ 3000 करोड़ देने को नहीं होता है, 1000 करोड़ देता हूँ करके सीएम ने बताए थे। इतने में लोकसभा इलेक्शन अनाउंस होने की वजह से वो ये नहीं हुआ। अभी वो 23 तारीख के बाद में जाके सीएम ने वादा किया है। आज की जो मीटिंग में उस पर क्या किस तरह का सर्वे करा? इसके अंदर हमारा जो बेघर जो है, हमारे जो मुस्लिम समाज के जो पूरे स्टेट के अंदर यानी जिलावार सर्वे करने के लिए आदेश किया है। बोर्ड के अंदर एक डिसीजन लिया गया है। मैं अभी पर्टिकुलरली फर्स्ट सर्वे जो है हमारा बेंगलुरु सिटी से होने दे करके, जैसे कि बेंगलुरु सिटी के अंदर हमारा नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूंसी आप ले लो, उसके अंदर DJLD करके, टन रोड करके है, आप सर्वोदय नगर करके, गरीब बहुत है, बहुत बेघर है। तो आज बोर्ड के अंदर डिसीजन लिया है पूरे स्टेट के अंदर जो बेघर है उनका एक सर्वे कराया जाए। शुरुआत जो है बेंगलुरु सिटी से। अच्छा साहब, ये कुंदगोल का जो बाई इलेक्शन है उसमें आपने काफ़ी अहम रोल अदा किया। अभी आप कैनवसिंग से भी आए हैं, तो किस तरह से इलेक्शन हुआ है, क्या लग रहा है आपको? नहीं, अच्छा इलेक्शन हुआ है। अभी वो जो शिवल्ली करके जो मरहूम जो थे, हर कौम को साथ में लेके चला है, खासकर शिवल्ली। तो सिद्धरामैया जो चीफ मिनिस्टर थे, कम से कम 2200 करोड़ ग्रांट लेके गए हैं, यानी इतना काम हो चुका है। तो वो हिसाब से 100% वो सीट जीत। बीजेपी का कहना है कि चिंचोड़ी और कुंदगोल जीत के जो हुकूमत को गिराने में कामयाब होंगे। नहीं, वो लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं और बीजेपी, मैं भी था वहाँ, लगातार एक 8 दिन था उधर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर ही था मैं। अभी जब 2018 के अंदर मैं इलेक्शन जब भी गया था, हमने जाके वोट ऐसा नहीं मांगा कि सिद्धरामैया का चेहरा देखो, राहुल गांधी का चेहरा देखो, हमारा साथ ने क्या है, हमने 5 साल में क्या किया, वो देख के वोट मांगते हैं। बीजेपी वोट देख के नहीं वोट मांग रहे। नरेंद्र मोदी का चेहरा देखो, नरेंद्र मोदी का चेहरा देख के वोट डालो। अरे भाई, थी उसकी एक बीवी नरेंद्र मोदी की, उसका चेहरा बराबर नहीं करके छोड़ के गए, हम उसका चेहरा देख के वोट डालना क्या? मतलब जिस तरह से एग्जिट पोल आया है उसमें तो लग रहा है कि एनडीए एक हुकूमत बना रही है। नहीं, ऐसा नहीं एग्जिट पोल का, मगर कल का वो देख के मेरे को तो ताज्जुब हुआ। वो रिजल्ट तो हो ही नहीं सकता। अभी 2-4 दिन इंतज़ार कर लो, मालूम पड़ जाएगा। शुक्रिया। डब्बे में है, वोट डब्बे में है। शुक्रिया। ज़मीर अहमद साहब का कहना है कि वक्फ बोर्ड की जो स्कीम है, जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, वो कहीं ना कहीं कामयाब होगा और साथ ही जो है एग्जिट पोल के लिए जिस तरह से नताइज दिखाए जा रहे हैं उससे जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नताइज आने तक इंतज़ार करना होगा। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, जी मीडिया, बेंगलुरु। जहाँ मस्जिदों की रौनक देखने लायक है, बेंगलोर की मस्जिद बिलाल पर पूरे दिन रमज़ान के रूहानी मंजर नजर आते हैं। यहाँ का जायजा लिया हमारे बेंगलुरु नुमाइंदे शाहिद काजी ने। माह रमज़ान बरकतों और रहमतों का महीना है। इस महीने में बेंगलुरु के मसाजिद जगमगा उठती हैं। इन्हीं खूबसूरत मस्जिदों में से एक मस्जिद है मस्जिद ईदगाह बिलाल, जो तुर्की की मस्जिद की अंदाज में बनाई गई है। इस खूबसूरत मस्जिद के अहाते में मुख्तलिफ लोग जो हैं, मुख्तलिफ दुकानों में लोग खड़े हैं और शॉपिंग कर रहे हैं और यहाँ पे इफ्तार की तैयारी कर रहे हैं। सुबह से लेके शाम तक यहाँ गहमा गहमी रहती है। बहुत सारे मुसाफिर भी यहाँ रहते हैं और बहुत सारे लोग इस मस्जिद के दीदार के लिए भी आते हैं। सब आप कहाँ से आए हैं? मैं बॉम्बे से। जी, क्या मस्जिद देखने के लिए आए हैं या कुछ देखने के लिए भी और मस्जिद का माहौल, एनवायरनमेंट देखने के लिए आए हैं? रोज़े तो बहुत अच्छे गुजर रहे हैं। गर्मी तो ज़्यादा थी, अल्लाह की फजीलत से पूरी बहुत ठंडी है। अभी यहाँ पे रोज़े का कोई महसूस नहीं हो रहा है। हल्की सी बारिश, रिमझिम बारिश हो गई है। हल्की सी बारिश भी हो रही है और ज़ोर से भी बारिश हो रही है माशाल्लाह। तो रोज़दार को कोई एहसास नहीं हो रहा है कि कोई प्यास या भूख की वजह कोई नहीं है। रोज़ा इफ्तार के लिए यहीं आते हैं? जी यहीं आते हैं इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह यहीं आते हैं। किस तरह से इंतज़ाम रहता है यहाँ पे? यहाँ एक्चुअली जो मुसाफिर होते हैं, जो ट्रैवलर्स होते हैं, उनके लिए एक्चुअली इंतज़ाम होता है। सब तरह के फ्रूट, डेट्स, पानी वगैरह सब कुछ इंतज़ाम करते हैं। गंजी का भी एहतमाम है? हाँ, गंजी का भी एहतमाम है। आज जिसको आश बोलते हैं, 30 डेज पे बनाते हैं यहाँ पे। अच्छा, समोसों का काफ़ी यहाँ पे अहम रोल होता है। आपको क्या लगता है समोसे जो है बेंगलुरु में कितने अहम है रमज़ान में? बहुत अहम है रमज़ान में समोसे। इसको इधर बहुत दिल से इधर समोसे बहुत लोग इधर खरीदते हैं। इधर सब क्या है? हलवा पूरी, स्वीट पूरी, जामुन, खजूर। मिठाई जो है खासतौर से रमज़ान के इफ्तार में मिठाई तो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती है, लेकिन आपका स्टॉल जो है मिठाई का लगा हुआ है। रमज़ान के महीने में कोई भी चीज़ डालो इंशाल्लाह चलती है। अच्छा, सिर्फ मिठाई बोल के नहीं, कोई भी चीज़ डालो। अच्छा, क्या खास है आपकी मिठाई में? मिठाई में हलवा पूरी खास है। कैसे बनाते हैं, क्या होता है इसमें? इसका ओन मैन्युफैक्चरिंग है, इसके अंदर पूरा स्वीट रहता है। अच्छा, तो इसमें खवा भी डाला जाता है? खवा भी डाला जाता है। कैसे लोग पसंद करते हैं इसे? अल्हम्दुलिल्लाह अब तक तो पसंद कर रहे हैं। और भी यहाँ पे बहुत सारे दुकान हैं। अब यहाँ भी देख सकते हैं कुछ
अनोखी मिठाई भी नज़र आ रही है जो बहुत कम जो है सिर्फ रमज़ान के मौके पर भी मिलती है। समोसे हैं, सब क्या क्या है आपके पास? सर मेरे पास अंडा पप्स है, खैमे के समोसे हैं, प्याज के समोसे हैं और जमजम नान है, ड्राई फ्रूट नान है और खैमे की नान है और बोले तो खव्वे की नान है और चोबे की नान है। मेरे पास लगभग 10-15 वैरायटी रहते हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा बिकने वाली चीज़ क्या है? सबसे ज़्यादा बिकने वाली चीज़ बोले तो खव्वे की नान है, चोबे की नान है और बोले तो समोसा है। अच्छा, समोसे का कितनी अहमियत है? समोसे में भी क्या वैरायटी है? समोसे में लगभग 15 वैरायटी तक का सकता है सर। अंडे का समोसा है, प्याज का समोसा है और खैमे का समोसा है और चिकन का समोसा है। लगभग 10-15 वैरायटी आता है। जो बिलाल मस्जिद का जो एक कैंपस है, जो एक यहाँ का जो एक पैसेज है, वो पूरा जो है दुकानों से भरा हुआ है और लोग जो है इफ्तार के वक्त में जो है बड़ी तादाद में यहाँ लोग आते हैं। काफ़ी बड़ी मस्जिद है और यहाँ बड़े शानदार तरीके से बहुत ही खूबसूरत अंदाज में जो है यहाँ इफ्तार होता है। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, जी मीडिया, बेंगलुरु। रमज़ान का दूसरा अशरा शुरू होते ही इफ्तार का दौर शुरू हो जाता है। आम जगह के अलावा मस्जिद और दरगाहों में भी एक साथ इफ्तार का दौर शुरू हो जाता है। वहीं ज़रूरतमंदों के इफ्तार और दीगर ज़रूरियात के लिए समाजी तंजीमें सामने आती हैं। हालांकि रमज़ान को लेकर उलमा लोगों को अपने अपने तरीके से समझा रहे हैं। आज 14 घंटे 15 घंटे का रोज़ा होता है तो लोग बेचैन हो जाते हैं। ये तकाज़ाए बशरियत है, होता है, मगर सब्र करने का नाम। रोज़ा सब्र करने का नाम है। रोज़े में हर चीज़ से सब्र किया जाता है। अगर गुस्सा आया तो हुक्म है कि खामोश हो जाओ। कोई तुमसे लड़ रहा है तो कह दो भाई मैं रोज़ेदार हूँ, तुम मत लड़ो। अल्लाह जज़ाए खैर देगा तुम्हारे को और तुम्हारी इबादत को अल्लाह कबूल करेगा। इफ्तार अगर कोई करवाता है किसी को तो उसके हिस्से में अल्लाह जल्ल शानहू बड़े फ़ज़ाइल और बड़ा अहम सवाब उसके हिस्से में लिख। इसी के साथ सलाम दक्कन में फिलहाल इतना ही।